Hello aspirants. Today we are going to discuss about dice. This is class 1 of dice. There will be two classes of dice. So see, dice is very easy concept. In fact, UPSC has asked 3 questions from dice in 2018 and one question in 2015. So it can be asked any year, like one question or 2 questions can be asked. And it is also very important to understand the concept of dice to understand cube concept from which UPSC is asking question. ठीक है, so we'll understand concept regarding to dice first, then we'll practice few questions, and then we'll solve previous year questions asked in UPSC from the dice concept. ठीक है, so first thing is, see, dice, everyone of you are aware, is like a cube which has 6 sides. So it is like this, a dice. ठीक है, don't go with the diagram, I am very bad with diagrams. So this is like dice which you can represent, like, see, it has 6 sides. One is like top edge, ठीक है, and this is like front edge, right? Front, and this is like right. So this right, ठीक है, एंड डाइस हैज 6 साइड्स, राइट? सो टॉप का नीचे होता है बॉटम, ठीक है, एंड राइट के ऑपोजिट में होता है, इस फ्रंट से उधर लेफ्ट, ठीक है, एंड फ्रंट से होता है बैक, ऑपोजिट में, फ्रंट के ऑपोजिट में. सो इट इज लाइक टॉप इज ऑपोजिट टू बॉटम, ठीक है, टॉप एंड ऑफ द डाइस इज ऑपोजिट टू बॉटम एंड, देन फ्रंट is opposite to back, and left side is opposite to right side. Like 6 sides of dice, it's just I am discussing basic concepts, ठीक है. It is under, it's like, see, if you see what top, front and right, these are adjacent sides, ठीक है, एंड ऑपोजिट में तो 6 साइड्स होता है, तो हर एक का एक ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है, एंड 2 बाकी सब एडजेसेंट में होता है, ठीक है. विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, सी, ठीक है. डाइस विल हैव 6 साइड्स. सो इन सॉल्विंग डाइस कॉन्सेप्ट्स, few cases you need to understand, like case 1 is when one face or number common. When one face or number common, see example, see, there are 2 dice, 2 dice, ठीक है, these 2 dice like are numbered like this, 1 2 6. see, dice में numbers होता है ना, and 6 3 4, ठीक है. see, and if you see here 6 is common between both the dice. 6 is common, 1 2 3 4, they are different. So every die is having numbers from 1 to 6, right? So if one number is common, then what you need to do is you need to go start from the common number and go till clockwise, ठीक है. 6, here you can write it as 6 के बाद clockwise direction में you are coming,
6 2 देन क्लॉकवाइज में 1, ठीक है. देन अगेन you are starting from 6 to clockwise is like this, right? 6 to 4, 6 4 and 4 से 3. So you need to write like this, and these numbers ऐसा जो भी आता है ये opposite है. Here 1 is opposite to 3 and 2 is opposite to 4 and 6. बचा हुआ नंबर क्या है? 6 is opposite to बचा हुआ नंबर is 5. So this is the trick. So case 1 में when one of the face or number are common, it is the trick. So you need to go from common number to clockwise direction and write those numbers, then again clockwise to numbers. So जो भी नीचे नीचे आता है वो opposite है, ठीक है. This is case 1. See, and again here see 6 का, see 6 is there, right? Okay, 6 का देखो एडजेसेंट नंबर्स क्या क्या है. एडजेसेंट मीन्स साइड ऑफ 6 इज 1 2 3 एंड 4. 6 का एडजेसेंट is 1 2 3 4. सो जो भी एडजेसेंट है वो ऑपोजिट नहीं हो सकता. सो बचा हुआ नंबर क्या है? सो 6 इज ऑपोजिट टू 5. लाइक दिस ऑल्सो यू कैन कम टू कंक्लूजन लाइक 6 इज ऑपोजिट टू 5. सो क्योंकि जो भी एडजेसेंट नंबर्स होता है दैट कॉन्ट बी ऑपोजिट, राइट? जो भी टच होता है 6 से, या सी 3 का एडजेसेंट इज 4. एडजेसेंट मतलब he is touching 4, 3 is touching 4 and 3 is touching 6. so 6 is also 3 का adjacent number, ठीक है. so जो भी टच होता है वो ऑपोजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है. from that also we can come to this. so then आता है case 2. see case 1 का we will see another example, ठीक है. another example is see here 1 4 2 and 6 2 3. so here one face common or one number common. so one face or one number common, इधर क्या है? 2 is common number, right? so for 2 is common number, so if you want to find opposites of every number, then what do? you start with 2 and go in clockwise direction. clock कैसे घूमती है? उस डायरेक्शन में, clockwise direction. here 2 clockwise direction, right? so you will write 2 clockwise direction में 2 से 4 and 4 से 1. again for this 2 to 6 2 6 and 6 से 3. so here क्या आता है? 1 is opposite to 3 and 4 is opposite to 6 and 2 का बचा हुआ क्या नंबर है? 2 is opposite to 5. so ऐसा आ जाएगा. so 1 is opposite to 3 and 6 is opposite to 4 and 2 is opposite to 5, ठीक है. ऐसा आना है. so this is case 1 when one face or number common है. so next case is case 2. case 2 when two faces are common. when two faces or numbers, like face पे number होता है on the dice, numbers are common, ठीक है. so
ऐसा है. So when two faces or numbers are common, so let's see the example here. Example 5, 2, 3, and here it is 5, 4, 2. ठीक है. So here see, common numbers are what? Two faces are common, 5, 2, 5, 2. So ये दोनों common है, so rest numbers are 3 is opposite to 4. ये रूल है. जो बचा हुआ नंबर्स है are opposite. So here when two faces are common, then other numbers are opposite. ठीक है. ऐसा 3 is opposite to 4. That is the second case when two numbers or faces are common, then other numbers are opposite. ठीक है. then चलते हैं, this is case 2, then case 3. see ज़्यादा क्वेश्चंस केस 1 और 2 से आता है, but still let's see case 3 also. when no faces or number common, when no faces or numbers common, so कोई भी फेस एक कॉमन नहीं है, तो इधर क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है. वन इज स्टैंडर्डाइज एंड सेकेंड इज जनरल डाइस. सो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट सरफेस इज 7. ठीक है. हियर सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस इज 7. so sum of opposite surface 7, sum of adjacent surface is 7. so अब देखो इधर क्या है कि whenever there is dice given, like two dice, like 1, 2, 3, and 4, 5, 6. सो देखो इधर क्या है, कोई भी नो फेस और नंबर्स कॉमन 1, 2, 3, 4, 5, 6. बट इफ यू सी सम ऑफ ऑपोजिट सरफेस इज 7. ठीक है. सम ऑफ ऑपोजिट सरफेस से हियर 7 आएगा. 4 इज ऑपोजिट टू 3 बिकॉज सम इज 7, राइट. देन 5 and 2. so 5 is opposite to 2 and 1 is opposite to 6. ठीक है. सम जो भी है वो ऑपोजिट आएगा. एंड एडजेसेंट साइड्स का सम ऑफ एडजेसेंट इज 7. ठीक है. क्योंकि इधर एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट सम इज नॉट 7, राइट. सो ऑपोजिट इज 7 हो सकता है. ठीक है. ऐसा. सो देन सम ऑफ एडजेसेंट इज 7 इज देखो सम ऑफ एडजेसेंट हियर 2, 5, 1, 4, 3, 6. हियर सम ऑफ एडजेसेंट 2 plus 5 is equal to 7. 4 plus 3 is equal to 7. सो जनरल डाइस वाला कॉन्सेप्ट है. सो इसमें क्या ऑपोजिट तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो. सी 4 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, 4 का ऑपोजिट कैन बी 1
और 2 और 5, ठीक है। और क्योंकि जो एडजेसेंट है ये 3 और 6 नहीं हो सकता, सो इसमें जो भी है ये सब ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। सो इन जनरल डाइस यू कॉन्ट डिटरमाइन व्हेन सम, हियर सम किसी का भी 7 नहीं आ रहा है, सो व्हेन वैसा तो देन दिस इज लाइक स्टैंडर्ड डाइस होगा। सो स्टैंडर्ड डाइस में यू कैन डिटरमाइन ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो देन नाउ वी विल सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइस। क्वेश्चंस कैसे आता है वो देखते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, this is question 1. So read the question, we will solve this question. There are two different positions of a single dice. See देखो, जब भी डाइस का क्वेश्चन है ना, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सिंगल डाइस का देता है। सिंगल डाइस है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, मतलब डाइस आपने फेंका एक डाइस को तो दो पोजीशन, फर्स्ट टाइम फेंका तो इस पोजीशन में आ गया, आपको ये तीनों दिख रहा है, सेकेंड टाइम फेंका तो आपको ये तीनों दिख रहा है, ठीक है। एंड आर गिवन, देन फाइंड द नंबर विच इज ऑपोजिट टू 4। सी ऑपोजिट टू 4 का फाइंड करना है। अब देखो ट्रिक क्या है, अभी देख, इसमें ओनली वन नंबर कॉमन, सो ओनली 2 इज कॉमन, राइट। सो दिस इज केस 1 का कॉन्सेप्ट लगेगा इधर, ठीक है। केस 1 का देखो, ओनली वन फेस और नंबर कॉमन, तो क्या आएगा, ऑपोजिट कैसे पता करेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम 2, यू नीड टू गो क्लॉकवाइज। सो 2 देन 3, क्लॉकवाइज में जाना है। क्लॉक कैसे घूमेगी, क्लॉक ऐसा घूमती है, 2 3 1, देन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लॉकवाइज यू नीड टू गो लाइक दिस, 2 4 6। सो 1 इज ऑपोजिट टू 6 एंड 4 का ऑपोजिट क्या है, 3, एंड 2 का ऑपोजिट क्या है, बचा जो है वो 5 है ऑपोजिट। सो क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू 4, ऑपोजिट ऑफ 4 इज व्हाट, 3। सो आंसर इज बी। सी प्लीज मेक नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हाउ वी आर सॉल्विंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा, बिकॉज यू कैन रिवाइज देम रेगुलरली, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, easy question, right? See, it doesn't even take 15 seconds in the exam, so ऐसा मिस नहीं करना है। ऐसा easy question मान ले कि in 2023 prelims there is 1 or 2 questions from dice, so you won't be missing these. So next question, there are 2 different position of a single dice, again दो position दिया हुआ है, are given, find the correct option which represent that dice is given in the question figure। अब देखो इसमें किस तरीके का डाई है, सो वन साइड कॉमन, सो वन साइड कॉमन दिया है, सी ए बी डी एफ, सो वन साइड कॉमन है तो केस 1 अप्लाई करते हैं। सो केस 1 के हिसाब से क्या होगा, क्लॉकवाइज, सो सी ए बी and C clockwise again, C D F. So here B is opposite to F and A is opposite to D and C का opposite क्या है, जो A B C D E, so E is opposite to C, हमें पता चला। अब देखो opposite जो भी है वो साइड में नहीं हो सकता, मतलब एक फ्रेम में नहीं दिख सकता। सो बिकॉज देखो अब इससे देखते हैं कि ऑपोजिट वाले कौन से दिया हुआ है। सी हियर ए डी दिया हुआ है, सो ए डी आर ऑपोजिट, सो दे कैनॉट बी विजिबल इन, इधर तो साइड दे रहा है ना, साइड में दे रहा है, एडजेसेंट दे रहा है, बट ए एंड डी कैनॉट बी एडजेसेंट बिकॉज दे आर ऑपोजिट, सो ये ऑप्शन कटेगा। देन इधर देखो सी एंड ई आर ऑपोजिट, राइट, बट इधर सी एंड E are given in adjacent sides, so this is also incorrect, ये भी कटेगा। then इसमें देखो E and B, E and D, E F, so ये देखो इधर all are opposite, adjacent वाला कुछ नहीं है,
ठीक है, सो सी इज करेक्ट. सो देन डी भी देखते हैं. डी में सी एंड बी, बी एंड एफ. सो बी एंड एफ आर ऑपोजिट साइड्स, राइट? सो दे कैन नॉट बी एडजेसेंट. तो इधर साइड में दिया एडजेसेंट है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो जो भी ऑपोजिट में होता है वो एक फ्रेम में नहीं आ सकता. सो इधर देखो बी एंड एफ आर ऑपोजिट बट हियर दे आर गिवन एडजेसेंट. सो ठीक है, बी इज ऑपोजिट ऑफ एफ, ए इज ऑपोजिट ऑफ डी एंड सी इज ऑपोजिट ऑफ ई. ठीक है, इट मीन्स बी का एडजेसेंट क्या होगा? बी का एडजेसेंट होगा, एफ को छोड़ के सब एडजेसेंट होंगे, ये डी सी ई, बिकॉज हर क्यूब में ऑपोजिट साइड को छोड़ के सारे एडजेसेंट होता है. देन सिमिलरली ए का एडजेसेंट क्या होगा? ए का एडजेसेंट होगा डी को छोड़ के सब, बी सी ई एंड एफ, क्योंकि जो भी ऑपोजिट नहीं है वो सब छोड़ के सारे एडजेसेंट होता है. सो ए का एडजेसेंट इज लाइक 4, हर क्यूब में हर एक का 4 एडजेसेंट होंगे, वो नंबर इटसेल्फ छोड़ के ऑपोजिट वाला छोड़ के होता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, देन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर 3 different positions of a single dice. So here 3 different positions दिया are given. What should be in place of question mark? देखो क्वेश्चन मार्क में ये दिया हुआ है, सो क्वेश्चन मार्क में प्लेस में क्या होगा? अब क्या पता चलेगा? 4 and 3 का जो भी एडजेसेंट होगा वो होगा. अब देखो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं पहले. इस इज लाइक क्या बन रहा है? 1 कॉमन फेस है, सो केस 1 अप्लाई करते हैं. इधर केस 1 से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज 6 1 2, 6 1 2. हियर क्लॉकवाइज अगेन, हियर से 6 5 4. सो क्लॉकवाइज ही जाना है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है. ठीक है, क्लॉक जैसे घूमती है वैसे जाना है. ठीक है, सो 2 इज ऑपोजिट टू 4, 1 इज ऑपोजिट टू 5 एंड 6 का ऑपोजिट है 3, राइट? जो भी बचा हुआ क्या है? 6 का ऑपोजिट 3 आएगा. सो अब देखो इधर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का? 3 and 4. ठीक है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 3 और 4 के अलावा दिया हुआ. सो देखो इधर 3 4, तो 3 का ऑपोजिट में क्या है? 6. ठीक है, 3 का ऑपोजिट में 6, सो इट कैन नॉट बी एडजेसेंट, राइट? सो ये कट जाएगा, समझ रहे हो? सो 3 इज ऑपोजिट टू 6, राइट? सो इधर एडजेसेंट दे रहा है, तो 6 कैन नॉट, ऑप्शन नहीं हो सकता. देन 3 का 3 साइड में नहीं हो सकता, सो ये भी कटेगा. सो 3 ऑलरेडी गिवन है एंड 4 इज ऑपोजिट ऑफ 2, सो इधर 4 दिया हुआ है, सो 2 नहीं आ सकता, सो 5. सो इधर आएगा 5, सो 5 आएगा एडजेसेंट ऑफ 3 and 4 का. तो आंसर है सी. समझ रहे हो? सो जो भी ऑपोजिट पता चल गया, जिनका भी जैसे 4 का ऑपोजिट 2 है, तो 2 इधर नहीं आ सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी दिया हुआ है. सो जो भी ऑपोजिट है वो साइड में नहीं आ सकता, एडजेसेंट में. ठीक है, देन अनदर क्वेश्चन. 2 positions of dice are shown below. When number 1 is on the top, what number will be at the bottom? अब obviously top and bottom नंबर 1 का ऑपोजिट पूछ रहा है, ये इनडायरेक्टली ऑपोजिट क्या आएगा? अब देखो 6 एक 4, 6 4 1 5. सो 2 नंबर्स आर सेम, सो केस 2 का सिचुएशन है. व्हेन 2 डाइस आर सेम देन 1 इज ऑपोजिट टू 5. क्या रूल क्या है? दो रिमाइनिंग नंबर्स है वो ऑपोजिट होंगे. केस 2 का रूल देखो, केस 2 का रूल इज
when two faces or numbers are common, then अदर नंबर्स आर ऑपोजिट से. इधर देखो टू फेसेस कॉमन है, सो रिमाइनिंग नंबर्स 3 इज ऑपोजिट टू 4. सेम हियर, व्हेन टू फेसेस आर कॉमन, सो 6 and 4 आर कॉमन, 1 इज ऑपोजिट टू 5. सो ये आंसर होगा 5. सो 1 टॉप है तो बॉटम क्या है, ऑपोजिट ही है. 5 इज द आंसर. सो ऐसा इजी क्वेश्चन आते हैं. नाउ लेट्स सी यूपीएससी का क्वेश्चन. सो दीज 3 questions are asked in UPSC in 2018 on the dice concept. See, read the question. Rotated position of single solid are shown below. Rotated position एक ही का 4 position are shown below. Various faces of the solid are marked with different symbols like dots, cross, line, etc. ठीक है. Answer the 3 items that follow given. अब देखो इधर से 1 डॉट 2 डॉट्स 1 लाइन, हियर 2 डॉट्स 1 लाइन 3 डॉट्स. सो 1 and 2 कंपेयर करो क्या चल रहा है. सो 2 आर कॉमन, सो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, लाइन कॉमन, राइट. सो इधर से क्या पता चलेगा, केस 2 अप्लाई करके 1 डॉट इज ऑपोजिट टू 3 डॉट. सो डॉट वाला ऑपोजिट टू 3 डॉट्स, यही तो पता चल रहा है ना इन दोनों से. देन देखो फिर और इन चीजों को कंपेयर करते, इन दोनों को 2 एंड ये देखो 1 लाइन कॉमन है, 1 लाइन कॉमन है, 3 डॉट्स कॉमन है, 3 डॉट्स कॉमन है. सो इधर से क्या पता चल रहा है, 2 फेसेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन. सो इट मेक्स थर्ड जो रिमाइनिंग है वो ऑपोजिट है. सो 2 डॉट्स ऑपोजिट टू 4 डॉट्स, राइट. ठीक है. सो केस 2 इधर अप्लाई करके देन अगेन इधर किसी और से अप्लाई करेंगे केस. देखो इधर 1 डॉट 2 डॉट्स कोई कॉमन नहीं है, ठीक है. सो इनका वो नहीं देख सकते हम, ठीक है. सो और इन दोनों के चेक करते हैं जहां 1 डॉट कॉमन है. देखो 1 डॉट कॉमन, 2 का 2 डॉट्स वाला कॉमन. सो एक कॉमन है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में जाएंगे, ठीक है. क्लॉकवाइज में इधर से जाएंगे. सो 2 डॉट्स, ठीक है, क्लॉकवाइज इधर से 1 लाइन देन 3 डॉट्स, ठीक है. देन 2 डॉट्स क्रॉस एंड 1 डॉट. सो ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट है केस 1 यूज करके. सो इधर से क्या पता चला, सो 3 डॉट्स और 1 लाइन एक सेम इधर ही आ गया. सो 1 क्रॉस इज ऑपोजिट टू लाइन. सो ये तीनों हमें पता चल गया अभी. सो 3 केसेस क्या आ गया हमारे पास, 1 2 और 3. अब देखो which of the symbol on the face opposite to the containing single dot. सिंगल डॉट का ऑपोजिट क्या है, सिंगल डॉट का ऑपोजिट है 3 डॉट्स. सो आंसर इज 3 डॉट्स, बी. ठीक है. देन विच ऑफ द फेस ऑपोजिट टू कंटेनिंग 2 डॉट्स, 2 डॉट्स का क्या है 4 डॉट्स वाला. सो आंसर इज 4 डॉट्स, सी. व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग क्रॉस. सो क्रॉस का क्या है, लाइन, क्रॉस का लाइन, सी इज द आंसर. सो कितना आसान क्वेश्चन है, लाइक 3 क्वेश्चंस इज लाइक 7.5 मार्क्स. सो 7.5 मार्क्स 2 मिनट में, 2 मिनट से भी कम, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाएगा. सो दैट इज वाई यू नीड टू नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरीथिंग. So that is idea of these classes also. So once you do dice concept, then you get these questions right. अगर नहीं होता तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है. यू नीड टू नो रूल्स, केस 1 अप्लाई होगा, केस 2 अप्लाई होगा, बिना पता हो के ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते. सो दैट इज वाई यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सो देन अगेन चलते हैं 54 का. देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है
2015 ऑफ यूपीएससी सी सैट में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईच ऑफ द 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब, 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब हैव बीन कोटेड विथ डिफरेंट कलर्स लाइक वी। ठीक है, अब देखो क्यूब है, 6 कलर्स है, सेम डाइस कॉन्सेप्ट है। सो कलर्स वाई ओ बी आर एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, ऐसा ही है, कलर्स आई जी वाई आर एडजेसेंट फेसेस, बी जी वाई आर एडजेसेंट फेसेस, वो वी बी आर एडजेसेंट फेसेस। अब देखो इधर भी अगेन सेम चीजें दिया हुआ है बट वर्ड्स फॉर्म में दिया हुआ है। सो देखो इधर इनसे पता चलेगा कि 2 कॉमन है। सी हियर जी वाई आर कॉमन, जी वाई आर कॉमन। ठीक है, अब देखो इसका डाइस ही बनाते हैं ना। सो इसका आई जी वाई, ठीक है, एंड इसका बनाते हैं जी वाई बी। सो देखो जी वाई 2 फेसेस कॉमन, जी वाई 2 फेसेस कॉमन। इधर से क्या पता चल रहा है, इधर से पता चल रहा है कि बी इज ऑपोजिट टू आई। तो 2 फेसेस कॉमन, केस 2 वाला, केस 2 से बी इज ऑपोजिट टू आई बिकॉज द रिमाइनिंग आर ऑपोजिट इफ 2 साइड्स आर कॉमन। देन इधर से देखते हैं, देखो वो बी एंड वो बी आर कॉमन, राइट, ओ बी आर कॉमन, सी एडजेसेंट। सो 2 कॉमन है, सो वाई इज ऑपोजिट टू वी। सो बाकी बचा हुआ क्या है, वी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, वाई हो गया। सो वाई हो गया। सो ओ एंड जी आर ऑपोजिट, वो इज ऑपोजिट टू जी। सो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फेस ऑपोजिट टू वो इज जी। सो सेम थिंग, सी सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स पता होना है, केसेस, केस 1 एंड केस 2। इधर से ही ज्यादा क्वेश्चंस आता है, केस 3 तो ऐसा ही है। सो सिर्फ ये याद करने से, ट्रिक्स करने से क्वेश्चंस हो जाता है। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, जस्ट डू एंड मेक नोट्स ऑफ दीज 2 केसेस एंड द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ, एग्जाम्पल्स भी लिखना है। ठीक है, सो दैट इज द क्लास 1। इन क्लास 2 ऑफ डाइस, सो क्लास 2 में we will discuss about open dice concept, open dice again very easy concept, एक बार करने से याद हो जाएगा। so don't worry, it is also going to be a very short class, we'll do the concept and we will practice questions। ठीक है, that's it for today's class। Thank you very much, I hope this class is helpful for you। Bye।